the quality of your life depend what you speak. آپ کس طرح سے بولتے ہیں, آپ کی زندگی کی کوالٹی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی خوشیاں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, how we speak. اور 1 verse میں کیا لکھا ہے اسی کی, موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. موت اور زندگی زبان کے قابو میں, life or death. So we need to understand our words are container. Our words are container. But today we are going to see few more things. Our words are indicators. Indicate کرتے ہیں. Our words are gauge. جیسے گاڑیوں کے اندر گیج لگا ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اس ٹائم ٹیمپریچر کیا ہے, اور ہمارے words بھی اسی طرح سے ایک گیج کی مانند ہیں جو ہمارے اندر کا حال بتاتے ہیں. You can see gas اپنی گاڑی کے اندر کہ وہ کتنی رہ گئی ہے. آپ کا گیج جو ہے گاڑی کے اندر گیج بتاتا ہے کہ گیس کتنی رہ گئی ہے, گاڑی کے اندر کے حالات کیا ہیں. So our words are indicator. وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارے اندر کی حالت کیا ہے. کیا ہم خوش ہیں, کیا ہم مایوس ہیں, کیا ہم دکھ میں ہیں, مشکل میں ہیں, مصیبت میں ہیں, یا ہم بڑے غصے میں ہیں. So words indicate کرتے ہیں. جب ہم بولتے ہیں, اگر ہم غصے سے بولتے ہیں, words indicate کر دیتے ہیں کہ یہ بات غصے میں کی گئی ہے. So words are indicator, indicate کرتے ہیں. So always remember, جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سگنل دے رہے ہیں کسی دوسرے شخص کو کہ who we are, ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہمارے اندر کی کنڈیشن کیا ہے. We are indicating something is bad. اگر ہم برا بول رہے ہیں, it means کہ ہمارے اندر کوئی برائی چل رہی ہے اور ہم دوسرے کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. اور بائبل میں بہت زیادہ ورسز میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. سو ایک اور خاص بات جو میں ورڈز کے حوالے سے, ٹروتھ اباؤٹ ورڈز کے حوالے سے سیکھ رہا تھا. Words always hurt. Words always hurt. لفظوں کی جو مار ہے وہ بہت گہری ہے. لفظوں کی مار بہت گہری ہے. شاید جب ہم ہاتھ سے مارتے ہیں کسی کو تو وہ درد, وہ چوٹ بھر جاتی ہے, وہ زخم. لیکن لفظوں کی مار بہت گہری ہوتی ہے. کسی شخص کو بہت غصہ آتا تھا اور اسے جب غصے پر جب وہ قابو نہیں پاتا تو وہ ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گیا اور اس نے کہا I don't know how to maintain my anger. جب میں غصے میں ہوتا ہوں میرے منہ میں جو آتا ہے میں کہہ جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اس نے کہا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ ایک نیل لینا اور نیل لے کر پیچھے ڈیک میں جا کے ٹھوک دینا. اور اس نے کہا اوکے. جب اسے غصہ آتا وہ نیل لیتا, زور سے جا کے ٹھوک دیتا, اور پھر کہتا ہے کہ تقریباً آپ آئیے گا میرے پاس 2 ویک کے بعد. پھر اس نے کہا کہ اب وہ جو نیل ہیں جو آپ نے لگائے تھے جب غصہ آئے ان کو واپس نکال لینا. تو اس نے بالکل ایسا ہی کیا, نیل واپس نکالے. تو اس نے کہا what do you see? اس نے کہا کچھ نہیں. اس نے کہا کیا آپ نے وہاں پر ہول دیکھے؟ yes. دیکھو آپ ان ہول کو نہیں بھر سکتے. So words are like that. When we nail them, words اپنا اثر وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں, نشان چھوڑ جاتے ہیں. Words hurt کرتے ہیں. جب ہم کسی کو برا بھلا کسی کو دکھ دیتے ہیں تو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں. آج گھروں میں مشکلات کیوں ہیں؟ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اس ملک میں شاید ہاتھا پائی تو ہو نہیں سکتی کیونکہ پولیس نے کافی دبدبہ ہے, نہ ہسبینڈ اور بیوی نہ بچوں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن لفظوں کی جو تلواریں ہیں وہ بہت زہریلی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ خوشی میں نہیں ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں. سو یاد رکھیں words hurts. انسانوں کو دکھ دیتے ہیں اور نہ صرف انسانوں کو بلکہ خدا کو بھی دکھ دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا کو تو شاید دکھ نہیں ملتا ہوگا.
इंसान दुखी होते हैं, लेकिन वर्ड्स इंसानों को और खुदा दोनों को दुख देते हैं। लास्ट वीक हमने देखा वर्ड्स, वैल्यू ऑफ वर्ड्स में वो कनेक्ट करते हैं और डिस्कनेक्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने देखा वो इंसानों से कनेक्ट करते हैं और ये देखा कि वो खुदा से कनेक्ट करते हैं। नाउ वी आर लुकिंग वर्ड्स, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी जो जुबान है, वो एक इंडिकेटर है, वो हमारे टेम्परेचर को बताती है, हमारा गेज है, और हम इसी जुबान से लोगों को दुख भी देते हैं और उनको मरहम भी लगाते हैं। एक हवाला पढ़िएगा, नंबर निकालिए, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर, इस स्टोरी को हम जल्दी से देखेंगे। गिनती की किताब 14 बाब, उसकी पहली 12 आयात। थोड़ा सा इसके मुतालिक बताऊंगा, आई डोंट हैव मच टाइम कि हम इसको पूरा पढ़ें। जब मोसेस ने चंद आदमियों को भेजा कि वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके आए, तो 12 लोग थे और उनमें से 10 जो जब वापस आए तो वो नेगेटिव लोग थे और 2 जो थे वो पॉजिटिव थे। 2 पॉजिटिव थे, 10 नेगेटिव लोग थे। आपको मौका मिले आपको जरूर इसको पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है। लेकिन जो आदमी उनके साथ गए थे वो कहने लगे हम इस लायक नहीं कि उन लोगों पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा जोरावर हैं, हमसे ज्यादा जोरावर हैं। अब उनके अल्फाज में मायूसी है, उनके अल्फाज में इंफीरियरिटी है, एहसास कमतरी है। वो बता रहे हैं कि वो ताकतवर हैं, हम ताकतवर नहीं हैं। वो अपने खुदा को नीचा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुदा के बड़े बड़े मौजज़े देखे, लेकिन बनी इस्राएल उन लोगों को देखकर डरी हुई है और अपने अल्फाज से खुदावंद को नीचा कर रही है और लोग वहां पर बुड़बुड़ाते हैं। लिखा है सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी। जब 10 लोगों की रिपोर्ट सुनी तो सब लोगों को दुख हुआ, चीखने लगी, ओहो हमें मरवाने के लिए लेके जा रहे हैं। वर्ड्स हर्ट करते हैं लोगों को, वो वर्ड तीरों की तरह लगे कि हमें मरवाने के लिए मोसेस यहां पर लेकर आया है। तो वो वर्ड्स जो थे वो तीरों की तरह से लग रहे थे। तो यहां पे लिखा है कलाम में, अगर इसी पैसेज को पढ़ते चले जाएं तो लिखा है और खुद 11वीं आयत में, और खुदा ने मूसा से कहा, गौर कीजिएगा, हमने ये सीखा कि वर्ड्स इंसानों को और खुदा दोनों को हर्ट करते हैं। वर्स 11 में क्या लिखा है? इफ यू हैव, पढ़ दीजिए अगर आपके पास है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने उनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। हाँ जी, थैंक यू। क्या लिखा है? What God felt, जब वो लोग चीखे मार रहे थे, खुदा का दिल टूटा। वर्ड हर्ट करते हैं। जब हम अपनी दुआओं में जाने अनजाने में हम खुदा के आगे ग्रम्बल करते हैं, हम उन मौजज़ात पर गौर नहीं करते जो खुदावंद ने पिछले सालों में हमारे लिए किए, और कई दफा सिर्फ एक काम नहीं होता तो हम खुदा के आगे बैठ जाते हैं अपना दुखड़ा लेकर, खुदावंद तूने ये क्यों नहीं किया, खुदावंद तूने ये क्यों नहीं किया। और खुदावंद क्या कहता है बनी इस्राएल से? ये कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे। जस्ट इमेजिन, कई दफा हम वेट नहीं करते, हम इंसल्ट करते हैं, हम तौहीन करते हैं खुदावंद की अपने वर्ड्स के साथ। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इससे हम खुदावंद को हर्ट करते हैं। खुदावंद को ये नापसंद है जब हम उसको हर्ट करते हैं, और जब वो दुख में होता है तो वो क्या कहता है? मैं इनको वबा से मारूंगा। जब हम ग्रम्बल करते हैं तो खुदावंद अपना हाथ हमसे उठा लेता है। क्या लिखा है? खुदावंद बनी इस्राएल को क्या कहता है? नाउ दे आर मर्मरिंग, दे आर ग्रम्बलिंग, आई एम गोना किल देम। मैं इनको मार दूंगा क्योंकि ये मेरी तौहीन करते हैं। और कई दफा हम अपनी दुआओं में, अपने घरों में हम खुदा की तौहीन करते रहते हैं। सो यू नीड टू पे अटेंशन कि हम कौन से वर्ड्स अदा कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स के अंदर क्या है? जिंदगी भी है और मौत भी है। आमीन। कई दफा लोग एक दूसरे को मजाक करते हैं और कहते हैं
I don't mean this. I don't. लोगों को दुख देते हैं और क्या कहते हैं? I don't mean this. आप काम पर भी शायद ऐसा हो सकता है आपसे कोई मजाक करता हो, कोई ऐसे सख्त किस्म के मजाक करते हो और बाद में कहता हो, oh, no, I don't mean this. मेरा मकसद ये नहीं था. एक हवाला पढ़िएगा, Proverbs chapter 26 verse 18 to 19. इमसाल 26वां बाब उसकी 18 से 19 आए. जैसा वो दीवाना जो जलती लकड़ियां और मौत के तीर फेंकता है, वैसे ही वो शख्स है जो अपने हमसाया को दगा देता है और कहता है, मैं तो दिल लगी कर रहा था. लकड़ी न होने से आग बुझ जाती है, सो जहाँ गीबत हो नहीं वहाँ झगड़ा मौकूफ हो जाता है. जहां गीबत को नहीं वहां झगड़ा. कुछ दीवाने होते हैं, सारे काम कर के, सब चीजें कह के, बुराई करके, हर किस्म की बुरी बात कह के, और बाद में कहते हैं मैं तो दिल लगी कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था. मजाक ना गल की थी, चेक करते रहते हैं. और जब मजाक की बात हो तो बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? कैसा दीवाना. वो दीवाने लोग हैं जो दिल लगी करते रहते हैं और बाद में कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था. लोगों के दिल तोड़ते रहते हैं और बाद में कहते हैं मैं मजाक कर रहा था. ये कलाम कहता है. We should be very careful about that, what we speak, क्योंकि हमारा दिल, लिखा है दरख्त, जो दरख्त अपने फलों से, हमारा दिल दरख्त है, हमारे लब फल है. हमारा दिल बताता है कि हमारे अंदर क्या है. हमारा दिल जो कुछ उसके अंदर चल रहा है हमारे लबों से बाहर आता है और उससे पता लगता है कि दिल में क्या है, दिल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई. बपतिस्मा सिर्फ ऊपर से लिया गया है या दिल का भी बपतिस्मा हुआ है? बपतिस्मा अंदर तक पहुंचा है उसका असर, या ये उस पत्थर की मानंद है जो हजारों टन पानी के अंदर छुपा हुआ है और जब तोड़ा जाता है तो अंदर से ड्राई होता है? क्या खुदा की नजात का काम अंदर हुआ है? क्योंकि जब खुदा की नजात का काम अंदर होता है तो लोग दिल लगी नहीं करते, लोग सीरियस होते हैं. People don't hurt with their words. वो ख्याल करते हैं कि मेरे कहने से, मेरे ये लफ्ज कहने से कोई दुख में न चला जाए. मियां बीवी एक जितना मर्जी फ्रैंक हो फिर भी वो सोचेंगे कि कहीं मेरे मजाक से भी कहने से मेरी बीवी कहीं गलत ना सोच ले, या बीवी सोचेगी मेरा खामन गलत मायनों में ना ले ले. So they will be careful about their relationship. They will be careful about their kids' relationship. क्योंकि उन्हें पता है words contain life and death. Words contain life and death. इनके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है. So इसलिए ये याद रखें. एक और हवाला है, बाद में अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा. 1 Samuel chapter 1 verse 6. वहां पर यहाँ पर एक दो बीवियों का जिक्र है. एक है हन्ना और दूसरी फिनना. और एक के लिए क्या लिखा है? वो उसको चिढ़ाती थी. पढ़ लीजिएगा बाद में आपको मौका मिले. वो उसको क्या करती थी? तो कई दफा हम अपने लफ्जों से चिढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, वाइफ खामन को, या अपने दोस्तों को, या अपने नेबर्स को, या रिश्तेदारों को. क्या लिखा है? वो क्या करती थी? चिढ़ाती थी. सो ये भी अच्छी बात नहीं है चिढ़ाने से. और हन्ना क्या होती है? बाइबल में क्या लिखा है? वो मायूस और गमज़दा थी क्योंकि उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी. हम खुशी भी दे सकते हैं लेकिन हम चिढ़ा भी सकते हैं. और उससे क्या लिखा है? वो आंसुओं से भरी हुई हैकल में जाती है और खुदा उस दिन उसकी रिक्वेस्ट को सुनता है और उसे ब्लेस करता है. सो वर्ड्स जो हैं हम चिढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कई दफा ये चीज बताई है जो वी शुड बी वेरी केयरफुल. कई दफा हम कनाडा में आते हैं, वी मर्मर, यू नो, बुड़बुड़ाना जिसे कहते हैं. हम बुड़बुड़ाते रहते हैं और हम पुरानी चीजें याद करते रहते हैं. जो लफ्जों की सच्चाई है उस पर गौर करना है.
You need to thankful to the Lord that God has given you good land. You need to thankful to the Lord that God has blessed you. और बाइबल में क्या लिखा है? वो लोग जो कंप्लेन करते हैं, खुदा उनको ये बात पसंद नहीं है. Exodus chapter 16 verse 8. खरूज उसका 16 बाब उसकी वर्स 8 देखें. और हम कौन हैं जो तुम हम पर बड़बड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भर के देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बड़बड़ाते हो उसे वो सुनता है. और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बड़बड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावन पर है. आमीन. जब हम मर्मरिंग करते हैं, when we complain, जब हमारे लफ्जों में बुड़बुड़ाहट होती है, ओ जी किथे आ गए, उथे ठीक सा, फलां सी, बुड़बुड़ाते हैं. कई दफा अच्छा खाना पेश किया गया, ए जी दही च मिर्चा ज्यादा सी, सलाद ठीक तरह पेश नहीं किया गया, आज रोटी जली हुई थी कुछ, और शुक्र नहीं कर रहा. खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है, तूने हमें ये चीजें अता की. बुड़बुड़ाएंगे. और जो अच्छी से अच्छी चीज है उसमें भी कोई नुक्स देखेंगे. किसी शख्स ने एक व्हाइट बोर्ड लिया और उस पे एक डॉट लगाया ब्लैक पेन से, और किसी शख्स से उसने पूछा व्हाट डू यू सी, आपको क्या नजर आ रहा है? उसने कहा एक ब्लैक डॉट. उसने कहा डोंट यू सी व्हाइट पेपर, डोंट यू सी, आपको सफेद कागज नहीं नजर आया, आपको सिर्फ ब्लैक डॉट नजर आया है. दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डू. बुड़बुड़ाना खुदावंद को नापसंद है. और जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो ये भी वर्ड्स हैं जो खुदा तक पहुंचते हैं. कहां तक पहुंचते? आपने पढ़ लिया इस आयत में. मैंने वो हवाला इसलिए पढ़ाया कि आप ये ना सोचे बुड़बुड़ाना नहीं खुदा सुनता, लड़ाई सुनता है. नहीं, बुड़बुड़ाना भी सुनता है, और दिल में भी जब बुड़बुड़ाते हैं वो भी सुनता है. ठीक है. आपको पता है दिल में शमाउन जो कोड़ी था उसके घर में खुदावंद थे, तो वहां पर वो दिल में बुड़बुड़ा रहा था, अगर ये नबी होता तो ये इस औरत को जान लेता, ये कौन है. वो बुड़बुड़ा रहा है, मैं एवं इन्हू दावत देती, ये तेरे पैरों के उत्ते बालों से पहुंच रही है, ये क्या कर रही है, इसे पता ही नहीं लग रहा. तो यीशु ने क्या कहा, शमाउन मैं इसे, दिल में भी जो बुड़बुड़ाते हैं वो भी खुदावंद सुन लेता है. Always remember, when you grumble, when you murmur, God listen. God listen. खुदा सुनता है. इसलिए ये याद रखें. It is important कि हम कैसे रहते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं, हमारे वर्ड्स हमारी लेवल ऑफ मैच्योरिटी को इंडिकेट करते हैं. हमारे अल्फाज, आप किसी बच्चे की आवाज सुने, तोतली आवाज में वो बोलेंगे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहेंगे, लेकिन अगर आप 5 years 6 years 7 years old बच्चों को बोले तो आपको वो नजर आएगा. कुछ पेरेंट्स बच्चों को गालियां भी सिखाते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे भी. ओके, जरा गाली काट के सुना, देखो. आई हैव लिसन, मैंने अपने कानों से सुना है, मैं आपको बता रहा हूँ. जरा काट, और चाचू ने जरा काट के सुना, तो सारे ओ बल्ले बल्ले. आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन एंड आई नो. बच्चों को किस किस्म की बातें, ये बात इसके मुंह से बड़ी प्यारी लग, जरा ये वाली गाली काट, ए बड़ी अच्छी लगती. वर्ड्स हमारे इंडिकेट करते हैं लेवल ऑफ मैच्योरिटी, हाउ मच वी आर मैच्योर. जब कभी 2-4 लोग खड़े होते हैं, आप उनमें खड़े हों, जब वो बातें कर रहे होंगे, आपको उनकी मैच्योरिटी लेवल पता लग जाएगा कि वो कितने मैच्योर हैं, किस लेवल पर उनकी गुफ्तगू है. कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपका दिल करेगा यार मैं तो जान छुड़ाऊं और निकला. कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनमें आपका खड़े होने को दिल करेगा और आप कहेंगे नहीं यार मैं थोड़ी देर और खड़ा हूं और इनकी बातें सुनूं. बड़ी मैच्योर बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें की जा रही हैं. और कुछ लोग मैच्योरिटी की वो ऐसे ऐसे कोई पास से गुजरे,
और देखा सी बस आज ही जानने हैं कुछ सो सारे इसी तरह से मैच्योरिटी we show our maturity level कि हम कितने मैच्योर हैं खुदावंद में। Always remember कि खुदावंद ने मोसेस को और इस्राएल को जब वो वहां पर लेकर आया, जब वो बुड़बुड़ाते थे तो वो अपनी मैच्योरिटी को जाहिर करते थे कि वो कितने इस्राएल के खुदा पर भरोसा करते हैं, कितना वो डीप है खुदावंद के अंदर, लेवल कितना है मैच्योरिटी का, कब कहां पर ये टूट सकते हैं। And I was thinking about James chapter 1 verse 26, पढ़ दीजिएगा James chapter 1 verse 26, जल्दी से हम देखिएगा, जल्दी से। yes. जेम्स याकूब का खत पहला बाब उसकी 26वीं आयत। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे। हाँ जी सिस्टर जी खड़े होके पढ़ें प्लीज। अगर कोई अपने आप को क्या समझे, इसका मतलब रास्तबाज, बड़ा पाक साफ, दीनदार, मैं बड़ा खुदावंद में गहरा हूं। और आगे क्या लिखा है, और अपनी जुबान को लगाम ना दे। तो क्या लिखा है, बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। उसकी दीनदारी बातिल है, कुछ भी नहीं है, खोखला बंदा है वो। थैंक यू। खोखला बंदा है, खोखला शख्स है वो, जो कलाम जुबानी तो याद कर सकता है, आयतें याद हैं, शायद गैर जुबानों में दुआ भी करता हो, शायद उसे बहुत ज्यादा आयात आती हो, शायद कलाम को और दुआ लंबी लंबी दुआ कर सकता हो, लेकिन जब उससे बात की जाए तो उसकी बातों से बू आती हो, हसद की, तनकीद की, बुड़बुड़ाहट की, गीबत गोई की, गॉसिप्स की। तो क्या लिखा है, ऐसे शख्स का ईमान कुछ भी नहीं है, बातिल है, डेड। और बाइबल में क्या लिखा है, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। कामिल शख्स, आपको पता है ये नहीं कहा गया कामिल शख्स वो है जो झूठ ना बोले। बाइबल में कामिल शख्स वो नहीं जो चोरी ना करे। कामिल किसको क्या कहा गया है, क्योंकि यहीं पे खता होती है, बातों में ही सब चीजें तय होती हैं, बातों में ही खता होती है, बातों में ही रिश्ते बनते हैं और बातों में ही रिश्ते टूटते भी हैं। इसलिए कहा गया है कामिल शख्स। सो बातों से ही हम अपने फेथ का इजहार करते हैं, हम कितने ज्यादा ईमानदार हैं, हम कितने ज्यादा रूटेड हैं खुदावंद में, बातों से पता लगता है। जब आप मजलिस में बैठते हैं, चर्च में तो सारे रिलीजियस होते हैं, गीत भी सारे गाते हैं, बैठे होते हैं, पर जब आप कभी प्राइवेट मजलिस में बैठे, वहां पे पता लगता है कितने मैच्योर हैं मसीह में। जब टेलीफोन पे बात होती है तब पता लगता है हाउ मच वी आर ग्राउंडेड इन क्राइस्ट, हाउ मच वी आर ग्राउंडेड। जब हम प्रेशर में होते हैं, जब झगड़ा होता है घरों में, मियां बीवी का, बच्चों के साथ या किसी शख्स के साथ, तब पता लगता है हाउ मच वी आर मैच्योर। उदो से उठाया जो एक दफा मैंने जरा क्रिश्चियनिटी में रखना है थे ते हुन दस जी में हुन कर में लगा, यू नो सम पीपल दे टॉक लाइक दैट, और छड़ो जी वो बपतिस्मा एक तरफ हुन जरा कर में लगा, यू नो पीपल टॉक लाइक दैट। लेकिन आई टेल यू द ट्रुथ कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही जिंदगी का ताज पाएगा। सो बनी इस्राइल खुदावंद को हर्ट करते थे, वर्ड्स हर्ट करते हैं, वर्ड्स इंडिकेट करते हैं, वर्ड्स रिवील कर देते हैं। और मैं इसमें ये देखा, वर्ड्स हमारे ईमान को बताते हैं, हाउ मच वी आर ग्राउंडेड। एक वाक्य देखेंगे, डेविड और गुलायत का कभी वाक्य आपने पढ़ा हो, बहुत दफा पढ़ा है। आपको पता है कि डेविड के सामने गोलायत कितना बड़ा था, और गोलायत अपने वर्ड्स से उसको डराता है, धमकाता है,
और उसको बुरा भला कहता है, पर डेविड उसके वर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं देता, डेविड उसके वर्ड्स को नहीं सुनता। What he said, डेविड क्या कहता है? डेविड क्या कहता है कि तू भाला और बर्छी लिए आता है, मैं अपने जिंदा खुदा के, और आज मेरा खुदा, क्या लिखा है? Then David said to, वो जो पैलेस्टाइन था, you come to me with a sword and spear, but I come to you in the name of the Lord of all, the God of all armies of Israel. मैं लश्करों के खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। वर्ड्स कैसे थे उसके, अल्फाज कैसे थी, जान थी उसकी दुआ में, जोर था, और वर्ड्स ने उसको इग्नाइट किया। और छोटा सा बच्चा, 17 साल का बच्चा, 9 फुट का देव कामत शख्स उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, दिस इज नॉट मी, दिस इज गॉड, दिस इज नॉट मी, दिस इज गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड आई कम टू यू। और आज मैं तेरा सर तन से जुदा करूंगा और तेरे जिस्म का गोश्त ये कौवे खाएंगे। वर्ड्स के साथ उसको शिकस्त दे दी, मार दिया। वर्ड हमारे फेथ को बताते हैं। कई दफा छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, असी डिगे होने हैं, आज ते बुखार चढ़ गया, आज मेरा यह काम नहीं होया, आज मेरा वो काम नहीं, ये करो जी। ईमान रखना है, आपकी दुआओं में शक जाहिर हो जाता है जब आप दुआ करते हैं। लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना, दुआओं में भी शक नहीं होना चाहिए। आमीन। फेथ को जाहिर करना चाहिए। सो इफ वी हैव फेथ, वर्ड्स हमारे फेथ को जाहिर करते हैं। और डेविड ने थ्रेटनिंग वर्ड्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, उसने किस पर कंसंट्रेट किया? खुदा के कलाम पर। आमीन। लोग आपको बुरे भले वर्ड्स कहेंगे, ऑलवेज रिमेंबर वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहां पर लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आपको उन पे तवज्जो नहीं देनी। आपको किसको याद रखना है? लश्करों के खुदा के ऊपर। और मेरा खुदा जिसने 1 साल पहले मौजज़े किए, 10 साल पहले, मैं भी तो इस दुनिया में एक मौजज़ा ही हूं, वो फिर मेरे लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। सो हमारे जो अल्फाज हैं वो इंडिकेट करते हैं हमारे दिल की पोजीशन को। लूक चैप्टर 6 वर्स 45 में क्या लिखा है? जब हम जमीन को ड्रिल करते हैं तो पाकिस्तान में भी आप सब देखते हैं, यहाँ पर जब मैं अल्बर्टा जाता था तो हर घर के बाहर वो ड्रिल लगी होती थी, और वो ड्रिल क्योंकि वो वहां पर ड्रिल करते हैं थोड़े ही आई थिंक 3-4 फुट और 10 फुट के नीचे गहराई पे जाने से ऑयल निकल आता है ड्रिल जब किया जाता है। तो जो कुछ हम ड्रिल करते हैं वो बाहर आता है, तो जो कुछ हमारे अंदर होता है वही बाहर आता है। तो बाइबल में क्या लिखा है? लूक चैप्टर 6 वर्स 45 में, अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है। हाँ जी, जो कुछ हम ड्रिल करेंगे तो ये ना समझें कि नहीं दिलों बहुत चंगा जे मुंह दा बुरा है, नहीं, फिर इसका मतलब हम बाइबल को डिनाई कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है? अच्छा आदमी अच्छे खजाने से अच्छी, जो कुछ हम ड्रिल करेंगे जो जमीन के अंदर है वो बाहर, अगर पानी है तो पानी निकलेगा, अगर आग है तो आग निकलेगी, अगर तेल है तो तेल निकलेगा, जो कुछ चीजें हैं वो बाहर निकल आएंगी। जी आगे क्या था? क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर। सो यू कैन नॉट से कि नहीं दिल अच्छा है मुंह का बुरा है, नहीं। अगर नजात का काम जिंदगी में हुआ है तो सबसे पहले नजात दिल को अपने कब्जे में लेती है, ये याद रखें। नजात किसको कब्जे में लेती है? तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलते हैं, लेकिन हक परस्ती के लिए दिल बदलते हैं। सबसे पहले जो काम होता है वो दिल है, दिल बदल जाता है। जो सख्त दिल है वो नरम हो जाता है। वो लोग जो मारते हैं मार खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो दिल का बदलना बहुत जरूरी है। हमारे अल्फाज हमारे दिल को जाहिर करते हैं। अगर दिल में बिटरनेस है, कड़वाहट है, तो कड़वाहट बाहर आएगी।
अगर दिल में गुस्सा है तो गुस्सा बाहर आएगा, अगर दिल में रहम है तो रहम बाहर आएगा, अगर दिल में गुरूर है तो गुरूर बाहर आएगा। दिल के अंदर जो भरा है वो हमारे लफ्जों से जाहिर हो जाएगा। हमारे लफ्ज इंडिकेट करते हैं हमारे अंदर की पिक्चर क्या है। इसलिए when we speak, when we talk, always remember we are containing something. Can you give me this? Always remember we are containing something. Well, I have a jug. I can contain, इसमें पेट्रोल डाल सकता हूं, या इसमें पानी डाल सकता हूं, या इसके अंदर मैं कोई कड़वा सिरका डाल सकता हूं। जग इज लाइक अ कंटेनर। तो मैं इसके अंदर क्या डाल सकता हूं वो मुझ पे डिपेंड करता है। वर्ड्स आर लाइक कंटेनर। आप जिंदगी को कंटेन करना चाहते हैं, या इसमें सांप और बिच्छू में डाल सकता हूं, मौत को डाल सकता हूं, क्योंकि वो कंटेन करेंगे। और अल्फाज को ही कहने से यीशु ने, खुदावंद ने क्या कहा? रोशनी हो जा, और रोशनी। वी हैव अ क्रिएशन पावर इन आवर वर्ड्स। सो वर्ड्स के अंदर जो कंटेनिंग पावर है, वी कंटेन समथिंग। नेवर थिंक कि हम कुछ कंटेन नहीं करते। वर्ड्स आर लाइक दैट, बट वी आर कंटेनिंग वेदर लाइफ और डेथ। कुछ ना कुछ है। इनकरेजमेंट है या डिस्करेजमेंट है, बिटरनेस है या हम किसी को रहम की निगाह से देख रहे हैं। वर्ड्स आर लाइक फायर। याकूब की किताब में लिखा है कि थोड़ी सी जो बाइबल में लिखा है कि थोड़ी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग। वर्ड्स कैन, यू नो व्हाट यू कैन डू। फायर से हम क्या कर सकते हैं? फायर जलाने के काम भी आती है और फायर गर्म करने के काम भी आती है। फायर से हम एक दूसरे को गर्म भी करते हैं, कुकिंग भी करते हैं, लेकिन उसी फायर से हम जला भी सकते हैं। सो फायर कैन बर्न यू और फायर कैन हील यू। बर्न यू और हील यू। सो डिपेंड कि हम किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ग्रेसफुल वर्ड हैं या बुरे अल्फाज हैं। इसलिए अपने बच्चों से या बाहर जब भी आप बात करें, यू नीड टू पे अटेंशन। अगर आप कहते हैं यू आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, पीपल आर नॉट गोइंग टू चेक, अच्छा अपना बपतिस्मे का सर्टिफिकेट दिखाओ। पीपल आर गोइंग टू सी योर वर्ड्स। आपके वर्ड्स आपका सर्टिफिकेट्स है। आपके वर्ड्स आपका दिल को बयान करते हैं। वर्ड्स आर लाइक कंपस, कि वो आपकी डायरेक्शन को बताते हैं। मैं एक न्यूरोसर्जन की स्टेटमेंट को पढ़ रहा था। आई जस्ट वांटेड टू रीड इट फॉर यू। आई वाज एंजॉयिंग कि किस तरह से वर्ड्स जो हैं वो इतना डिफरेंस डालते हैं। ब्रेन का तज्जिया किया गया, और ब्रेन आपको पता है ये हमारा सेंट्रल सिस्टम है, और यहां पर जो मेडिकल शोबे से ताल्लुक रखते हैं, दे अंडरस्टैंड। ब्रेन में हर हिस्सा उन्होंने चेक किया कि जब मुख्तलिफ हिस्सों को हम स्टिमुलेट करते हैं तो वो सिर्फ उसी हिस्से को टच करते हैं, लेकिन जब स्पीच थेरेपी को उन्होंने स्टिमुलेट किया तो वो पूरे जिस्म में मैसेज पहुंचाती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ब्रेन में मुख्तलिफ हिस्सों को उन्होंने टच किया तो वो सिर्फ उसी हिस्से को वो मैसेज जाता था, लेकिन जब स्पीच थेरेपी को उन्होंने स्टिमुलेट किया, न्यूरोसर्जन की रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि वो जो मैसेज था वो पूरे जिस्म में गया। इट मींस अगर आप उठते हैं और आप ये कहते हैं आई एम वीक, तो आपने अपनी स्पीच से कह दिया आई एम वीक, तो वो जो मैसेज है वो आपके पूरे जिस्म में चला गया, और वो मैसेज आपको क्या कर रहा है? कमजोर बना रहा है। और अगर आप उठे हो, आप कहते हो खुदावंद की शादमानी मेरी कुवत है, आई एम ऑल राइट, आई एम ब्लेस्ड, वो मैसेज आपके बदन में गया, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए।